हेलो बच्चों, आई होप आपका पैटिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा. सो हियर द सॉल्यूशन ऑफ 5th स्टैंडर्ड, डेट 20 October 2024. So let's start the solution. So here the first question is, silkworm can find its female by its, and the option are smell, sound, color, all of this. So the correct answer is smell. Second, the medicine for snake bite is prepared from option A, poison of the snake, B, skin of the snake, C, internal organ of the snake, and last none of these. So जो उसकी medicine बनती है that is from the venom of the snake, that is poison. Next question, why government has made a law for protecting wild animals? Options are prohibit hunting, prohibit catching wild animals, selling their body parts, and last one all of the above. So सारी ही चीज़ें prohibited है, so इसका आंसर आएगा all of the above. Which part of the tongue tastes bitter? The option is front, back, middle, all. So आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डायग्राम है where we can see the area of the taste on the tongue. So here on the back side we can see that there are the taste buds for the bitter. So answer is back. What is the nature of digestive juices in the stomach? Options are acidic, basic, neutral, all. So the answer is going to be acidic because stomach में जो फर्स्ट सबसे पहले रिलीज होता है that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बिकॉज ऑफ दिस जो नेचर हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस का वो हो जाता है एसिडिक. हाउ डू वी कम टू नो दैट फूड हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? सो ऑप्शंस आर by its color, by its taste, by its smell और all of this. So इधर बच्चों अगर फूड का कलर चेंज हो गया, अगर फंगस हो जाएगा तो भी उसका कलर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा, बैड स्मेल आएगी. सो आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस. Which part of the seed stores the baby plant? The options are cotyledons, seed coat, embryo, none. So here we can see the diagram of the seed. Now ये seed germinate हो रहा है. So इधर देख सकते हैं that here the roots is coming out, जिसको हम radical भी बोलते हैं, and this is the cotyledon. This store the food for the embryo. So the answer is going to be cotyledon. Identify the name of an insectivorous plant, and the options are zinnia, cactus, money plant, and pitcher plant. So zinnia, it is a flowering plant, cactus, it is the desert plant, money plant सबके घर पे होता है, it is a climber. So the correct option is pitcher plant. This is the insectivorous plant. From here our section B has been started. क्वेश्चन है व्हाट बिहेवियर यू ऑब्जर्व ऑफ एंट्स व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ. सो जब भी एंट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, सो दे मूव बाय द स्मेल. सो उनका जो पाथ है, सपोज दिस इज द पाथ ऑफ द एंट एंड दे आर मूविंग, सो दे आर मूविंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्मेल विच दे आर गेटिंग. अगर हम उसका पाथ ब्लॉक कर देंगे, सो इट इज गोइंग टू stuck here only because it want to follow the same path. So the answer is going to be ant move because of the smell if their path is blocked, they
अगर हम उनका उसका पाथ ब्लॉक भी कर देंगे, सो दैट इज गोइंग टू बी ट्राई टू ऑन द सेम पाथ, वो सेम ही पाथ पे चलने का ट्राई करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर द एंटरटेनमेंट ऑफ द पीपल, वेयर एंड व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस. सो बच्चों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि एंटरटेनमेंट के लिए जो काफ़ी सारे लोग हैं अपनी लिवलीहुड के लिए काफ़ी सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आप सर्कस में भी देखा होगा आपको, स्नेक चार्मर्स होते हैं, वो स्नेक को लेके आते हैं. एंड मदारी होते हैं, दे ब्रॉट द मंकीज. सो just you have to write where you can see these peoples using these animals for the purpose of entertainment as well as their livelihood. Okay, so you must have seen in circus, you have seen snake charmers, you have seen madaris with monkey. कहाँ देखने को मिलेगा? Where? So the places could be circus, park or roadside. Next question, has anyone ever told you to hold your nose before taking medicine? Why do you think they tell you to do this? So students, जो टेस्ट होता है that depends on the smell also. जब प्रॉपर स्मेल आती है तभी प्रॉपर टेस्ट भी आता है. So sometime if someone is saying to take the medicine and block your nose, तो उसमें क्या होगा कि जब मेडिसिन जो बहुत ही कड़वी होती है, बिटर टेस्ट होता है, जब आप नोज ब्लॉक कर देंगे तो वो बिटर टेस्ट आपको नहीं आएगा. सो दिस इज द रीजन समटाइम पीपल से दैट यू जस्ट होल्ड योर नोज while taking the medicine, so you will not get that bitter taste. Taste we get complete taste with the help of smell if nose is block, the bitter taste of medicine will not be tasted. Next question, why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? So जो चैप्टर है मैंगोज थ्रू आउट द ईयर, उसमें दिस इज द माविडी तंत्र जिसके लिए शुगर जैगरी को मिक्स करके उसके पल्प को सन में ड्राई किया जाता है. सो द आंसर इज टू मेक Mamidi Tantra. This is the answer. Next, what things are soaked before cooking in your house and why? आपने देखा होगा घर पे जो स्प्राउट्स होते हैं, जो होल ग्रेन्स होते हैं, चना होता है, राजमा होता है, मग होता है, मूंग होता है, दे आर सोक्ड ओवरनाइट. फर्स्ट रीज़न उसको स्प्राउट के लिए, एंड सेकेंड रीज़न दे आर वेरी हार्ड. वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो कुकिंग टाइम थोड़ा सा लेस लगेगा. सो हियर फर्स्ट फॉर स्प्राउटिंग, सेकेंड टू मेक देम soft so they can
easily be grind and less cooking time. What things? So chana, rajma, whole moong or urad, etc. So what are the things soaked before cooking? These are the things: chana, rajma, whole moong, urad, etc. Why they are soaked whole night? Because either for the sprouting or they are soaked, so less cooking time will be there and they can be easily grind. Section C. Look at the picture given below and guess how the seed travel and reach the different places. So students, यहाँ पे we can see that this is the squirrel. Squirrel is taking the seed from one place to another. In second, we can see the bird, and lastly, this is the seed of this is the coconut. Here seed is floating in water, so it can disperse from one place to another. So from here we can see that seeds are dispersed मतलब एक जगह से दूसरी जगह. These are the agent. जो animals हैं, water है, these are the dispersal agent of the seed. So here first squirrel, second bird, and third seed is floating in the water. So these we can say that these are the dispersal agent of the seeds. Next, in what ways do human beings make use of the special sense of smell of dogs? डॉग्स हैव वेरी स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल. उनको बहुत दूर की भी जो स्मेल होती है वो पता हो जाती है, जो अननोन स्मेल होती है वो भी उन्हें पता हो रहती है. सो वी कैन सी दैट डॉग्स कैन बी यूज्ड बाय पुलिस टू कैच द thieves. They are also used to detect bombs. They can be also used to find missing people. There are many different ways. These are the few ways I have listed here that most of the time police use to catch the thieves, to detect the bombs, and they use dogs to find the missing person. Next, write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? So the birds we can give the example are crow, pigeon, sparrow, and the size of their eyes are very small. Size are very small compared to their heads. Why you cannot taste food properly when you have cold? So बच्चों, जब भी कोल्ड होता है तो जो नोज़ होती है वो ब्लॉक हो जाती है. ओके, तो जब भी नोज़ ब्लॉक हो जाएगी और हम कोई भी चीज़ टेस्ट करेंगे तो उसका कंप्लीट टेस्ट हमें नहीं आएगा, बिकॉज इवन स्मेल हैज़ द अकाउंट फॉर द टेस्ट. ओके, सो ड्यूरिंग cold, as
nose is blocked no proper smell is identified, thus one cannot taste the food properly. Next, how do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. सो बच्चों, अगर कोई भी गार्बेज जो कचरा होता है, जो हीप ऑफ गार्बेज होता है, जहाँ पे सारा कचरा डंप किया जाता है, जो डंपिंग जोन बोलते हैं, वहाँ से अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन जाएगा, सो डेफिनेटली दे विल feel a bad smell, they will experience a very bad smell, and many of us will block our nose. But if we think about the children who is regularly working there, और जो भी garbage collect करते हैं, उनको एक habit हो जाती है, ठीक है. So due to because such children are picking the things daily from the garbage, they get habituated, so they must not feel the same. जैसा हम नोज ब्लॉक करके चलते हैं, हो सकता है वो वैसा ना करें. सो द आंसर इज गोइंग टू बी we will experience the bad smell and many of us block or cover the nose and children who spend the whole day they get used to for such smell, they will not cover the nose. Next, here section D has been started, and the question is, the government has made a law that no one can catch and keep the snake. What do you think this law, and give reason for your answer and write in your own words. So बच्चों, अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है, ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ लिखा है that we should not catch and keep the snake, the person should not catch and keep the snake. So first reason it could be that snakes are poisonous, they are dangerous. Most of them may lose their life in catching of such poisonous snake. This could be the one of the reason. Second thing, अगर animals हैं, उनको किसी भी रीज़न से अगर हम उनको स्लेव बना के रखते हैं, उनको बंद करके रखते हैं, so this is not right. None of the animal will be happy if they will kept in the cage or they will kept as a slave. So first, it could be dangerous as snakes are poisonous. Person life
Second, no animals should be kept in cage and treat as slave. Everybody love their freedom. राइट सबको फ्री होने का हक है. हम कोई भी एनिमल को बंद करके नहीं रख सकते हैं, ठीक है, उनकी फ्रीडम छीन के हम नहीं रख सकते हैं. दिस इज नॉट राइट. सो दिस इज द वाई द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ. हाउ आर दीज थिंग्स आर मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, पिकल. सो पापड़ घर पे मम्मी ने बनाते होंगे, आपके काफ़ी सारे या नेबर्स को देखा होगा बनाते हुए पापड़. तो फर्स्ट वी विल टेक अबाउट दी पापड़. पापड़ उड़द की दाल का भी बनता है, राइट, राइस का भी बनता है, एंड समटाइम पोटैटोज के भी पापड़ बनते हैं, राइट. सो दीज आर द थिंग्स जिससे पापड़ बनता है. नाउ विल सी हाउ दिस आर मेड. सो डो इज मेड. जो डो बनता है या तो उड़द की दाल का है, उसको भिगो के रखेंगे, उसको पीसेंगे, ओके. देन राइस है, सेम राइस का जो फ्लोर होता है उसका डो बनेगा, आटा बनेगा, उसको स्टीम किया जाएगा सारे स्पाइसेस डाल के. डो इज मेड, स्पाइसेस आर एडेड, then dough is rolled and dried into sun. Second है chutney. Once again chutney is made up of coriander, mint, tomatoes, okay. So here we will write the ingredients, जिसको हम धनिया बोलते हैं. कोरिएंडर मीन्स धनिया, मिंट, tomatoes, they are grind with additional spices like green chili, salt, sometime lemon is also added, and third is pickle. Pickle can be made up of mango, it can be made up of lemon. In some villages some vegetables are also used to make pickle. So here we will use mango. So mangoes are diced, cut, dried in the sun, so they can be dehydrated. उनका जो पानी है वो सूख जाए. And then add spices along with oil. Once again the jar is put in sun. Okay, next question. If we were to say that digestion begins in the mouth, how would you
explain this. So yes, digestion begin with the mouth because in mouth क्या रिलीज होता है बच्चों? सलाइवा. सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज सलाइवरी अमाइलेज, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च. सो यस, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. कैसे? बिकॉज माउथ contain salivary glands which releases salivary amylase. ये क्या होता है बच्चों? ये एक तरह का एंजाइम होता है. ये क्या करता है? इट हेल्प टू डाइजेस्ट स्टार्च. स्टार्च को क्या करता है? ये जो स्टार्च है उसको सिंपल शुगर यानी कि माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. नेक्स्ट, here is the given sleeping time of some animals. Below each picture write for how many hours a day that animal sleep. So यहाँ पे we can see that here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okay, and जो एक section है that is going to represent 2 hours. Okay, अगर one section is going to represent 2 hours, तो ये टोटल कितने आवर्स हो गए? 24 आवर्स हो गए. करेक्ट. सो लेट्स सी हियर काउ. तो यहाँ पे कितने एरिया शेडेड है? 2 एरिया शेडेड है, राइट. सो इधर 2, इधर ऑल्सो 2 आवर्स. सो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 आवर्स. In Python we can see how many areas are shaded. That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and one area is responsible for 2 hours. We'll count 2 hours. So it is going to be 18 hours. Giraffe बहुत कम, only one shaded area. So it is going to be only 2 hours. Cat 1 2 3 4 5 6. So it is going to be 6 to the 12 hours. ओके, सो आई होप बच्चों आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू. आज का पेपर आपका बहुत अच्छा रहा होगा, तो आइए देख लेते हैं उसका सॉल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मैनी लैक्स. तो आपको पूछा है 1 करोड़ के अंदर कितने लैक्स होते हैं. तो आपको पता होगा कि 1 करोड़ के अंदर 100 लैक्स होते हैं. 100 लैक्स मिला के 1000 बनाते हैं. तो आपके फर्स्ट MCQ का आंसर है B 100. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है बेटा? आपको बोला है व्हेन फिश इज़ ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट. जब आप फ़िश को ड्राई करते हो तो उसका जो भी वेट होता है, फ़िश का वेट उसका 1/3 हो जाता है. तो अगर आपने 6 kg की फ़िश को ड्राई किया है तो आपको कितने kg ड्राइड फ़िश मिलेगी? ठीक है, अगर आपने 6 kg को फ़िश को ड्राई किया है तो आपको कितने kg फ़िश मिलेगी? ठीक है, तो आप जितनी भी फ़िश ड्राई करोगे उसका 1/3 हो जाएगा. तो अगर आप 6 kg की फ़िश को ड्राई कर रहे हो तो भी उसका 1/3 हो जाएगा. तो आपका वेट ऑफ ड्राइड फ़िश, वेट ऑफ ड्राइड फ़िश, आपके ड्राइड फ़िश का जो वेट होगा वो होगा 1/3 ऑफ जो भी आप ड्राई कर रहे हो. ठीक है, अब आप कितनी ड्राई कर रहे हो? 6 kg. तो ये होगा 1/3 इंटू 6, तो 3 2 6. कितना आएगा बेटा? 2 kg. ठीक है, कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी ऑप्शन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. चलिए थर्ड देखते हैं. आपको बोला है बेटा यहाँ पे द टोटल लेंथ ऑफ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फिगर इज़ 308 मीटर. क्या बोला है? द टोटल लेंथ ऑफ
फेंस अराउंड अ स्क्वायर फिगर इज़ 308 मीटर। मतलब कि आपको एक फेंस जो है वो कौन से फॉर्म में है बेटा, वो स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। अ फेंस इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर और इसकी टोटल लेंथ कितनी है 308 मीटर। तो स्क्वायर में बेटा अगर एक साइड एल है तो चारों चार साइड इक्वल होगी, तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो होगी एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, मतलब कितनी होगी 4L। तो टोटल फेंस कितनी है बेटा 4L। आपके पास टोटल फेंस की जो लेंथ है वो कितनी है 4L। अभी ये 4L की वैल्यू आपको कितनी दी है 308 मीटर। आपको बोला है 4L इज इक्वल टू 308 मीटर, तो देयरफॉर L होगा 308 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आपका L कितना होगा बेटा 308 डिवाइडेड बाई 4। आप डिवाइड करो 308 को 4 से, क्या मिलेगा आपको, 4 डिवाइड करना है तो 4 7 ज़ा 28 माइनस 2 8 अगेन 4 7 ज़ा 28, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको हर एक साइड की जो लेंथ है यानी कि L वो कितनी मिल जाएगी 77, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन 77 मीटर्स, ठीक है, 77 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट MCQ देखते हैं। तो आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंप्लीट एंगल, इसमें से कौन सा कंप्लीट एंगल है। तो आपको पता होगा 360 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है, क्योंकि 180 डिग्री क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है 180 डिग्री की, और 90 डिग्री क्या होता है, राइट एंगल होता है, ठीक है। 270 में 3 राइट एंगल आएंगे बट वो कंप्लीट एंगल नहीं बनेगा। कंप्लीट एंगल मतलब आपने जहाँ से शुरू किया वहीं पे ख़त्म किया, ठीक है। तो ये जो आपका कंप्लीट एंगल बनेगा वो कितने का होगा बेटा 360 डिग्री। तो आपका करेक्ट आंसर है A 360। नेक्स्ट आपको बोला है 6/13 बड़ा है या 4/13 बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है 13 13, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। अगेन जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। किसका न्यूमरेटर बड़ा है 6/13 का, तो अगर 6/13 का न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा होगा, तो बड़े की साइन मतलब ये, तो ये हो जाएगा ग्रेटर, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ होल, इसमें 6 पार्ट ऑफ होल और इसमें 4 पार्ट ऑफ होल, तो ऑब्वियसली 6 पार्ट्स आर ग्रेटर देन 4 पार्ट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला है नीतू वॉन्ट्स टू गिव ₹250 टू हर 5 फ्रेंड्स। 5 फ्रेंड को मिला के वो कितने देने वाली है बेटा 250 रुपीज़। हाउ मच मनी ईच फ्रेंड विल रिसीव, हर एक फ्रेंड को कितना रुपया मिलेगा अगर वो इस मनी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको समझ जाना है कि उसने मनी को इक्वली डिवाइड किया है, ठीक है। तो अगर 5 फ्रेंड्स के बीच में 250 रुपीज़ दे रही है तो 5 फ्रेंड को मिला के 250 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो हर एक फ्रेंड को कितना मिलेगा, तो ये होगा 1 × 250 डिवाइडेड बाई 5। तो आपका आंसर आएगा 250 डिवाइडेड बाई 5, 5 5s आर 25 एंड 0, कितना आएगा बेटा 50 रुपीज़। हर एक फ्रेंड को कितने रुपीज़ मिलने वाले हैं 50 रुपीज़। हाउ मच मनी ईच फ्रेंड विल रिसीव, तो दे विल रिसीव ₹50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है विच लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मिरर हाफ्स बाय डॉटेड लाइन। आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करके कौन से लेटर को 2 मिरर हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो पहला है F, ठीक है। अगर आप कोई भी लाइन ड्रॉ करने का ट्राई करोगे तो ये मिरर हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, ना ही हॉरिजॉन्टल ना ही वर्टिकल, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। सेकंड अगर आप ट्राई करते हो G, तो यहाँ पे भी कोई साइड से ये मिरर हाफ नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है।
थर्ड आपका जो ऑप्शन है जे, उसमें भी अगर आप यहाँ से ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो, कुछ सेट होने वाला नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका जो लास्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, वो आपका करेक्ट है। क्योंकि अगर आप यहाँ से ऐसी लाइन बनाते हो तो ये लाइन आपके ए को दो मिरर हाफ में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो आप किसको दो मिरर हाफ में डिवाइड कर सकते हो डॉटेड लाइन की हेल्प से, ए लेटर को। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोला है विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स डज नॉट रीड द सेम ऑन अ हाफ टर्न। अगर आप एक हाफ टर्न करते हो तो कौन सा लेटर सेम नहीं दिखेगा। अगेन कौन सा लेटर सेम नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आपका ऑप्शन है जूम। अगर आप इसको हाफ टर्न करोगे, हाफ टर्न मतलब ऐसा है तो वो ऐसा हो जाएगा 180 डिग्री। तो हाफ टर्न होने के बाद ये एम आपका उल्टा होके डब्ल्यू हो जाएगा और ये ओ ऐसे ही रहेंगे, और जेड आपका हाफ टर्न होने के बाद उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर भी अगर आप देखोगे तो ये जूम का ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये सेम नहीं दिखेगा। बाकी के ऑप्शन में अगर आप इसको रोटेट करते हो, जैसे कि आपका एम ओ डब्ल्यू, अगर आप इसको 180 डिग्री घुमाओगे तो भी ये डब्ल्यू है वो एम हो जाएगा, ओ और वापस एम का डब्ल्यू हो जाएगा। स्विम्स, तो ये भी वापस सेम रहेगा और सिस भी सेम रहेगा। तो अगर आपने 180 डिग्री घुमाया है तो डज नॉट रीड द सेम, कौन सा सेम नहीं रीड करेगा, जूम वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला है अजय सेल्स स्क्विड फॉर ₹50 पर केजी। इसका मतलब क्या कि 1 kg का कितना रुपीज़ है बेटा, 50 रुपीज़। 1 kg के कितने रुपीज़ है, 50 रुपीज़, ₹50। आपको बोला ही सोल्ड टोटल ऑफ 11 kg स्क्विड। उसने टोटल कितना स्क्विड बेचा बेटा, 11 kg। कितना स्क्विड बेचा बेटा, 11 kg। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे, तो व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही अर्न्स। ठीक है, तो अगर वो 1 किलो स्क्विड बेचता है तो उसको 50 रुपीज़ मिलते हैं। तो अगर उसने 11 kg स्क्विड बेचा है तो उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे, उसको मिलेंगे 11 इंटू 50, 11 5 ज़ार 55 और 0, तो कितने रुपीज़ मिलेंगे, ₹550 मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको बोला है मेजरमेंट ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल इज़। ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मेजरमेंट होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और एक्यूट एंगल लेस देन 90। विच टाइप ऑफ एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock। जब 4 बजेंगे तो जो एंगल बन रहा है वो कैसा होगा। तो जब 4 बज रहे हैं तो सिनेरियो कैसा होगा बेटा, तो जब 4 बज रहे हैं ना, तो अगर आपका एक जो मिनट हैंड है वो तो 12 पे होगा, और 4 बज रहे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आपका जो आवर हैंड है वो 4 पे होगा और जो मिनट हैंड है वो 12 पे होगा। ठीक है, तो 4 o'clock था, तो 4 o'clock में आपकी जो हैंड्स की पोजीशन है वो कुछ ऐसी है, ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। तो ये एंगल आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि 90 से ज़्यादा है, और 90 से ज़्यादा है तो ये क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 4 o'clock इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है अ क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। एक ब्लैक बोर्ड जो है वो कितना लॉन्ग है बेटा, वो लॉन्ग है 75 सेंटीमीटर, एंड वो कितना वाइड है, वो है 12 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, अभी ये रेक्टेंगल फॉर्म करेगा बेटा, तो ये 75 होगा, तो ये भी 75 होगा, ये 12 होगा, तो ये भी क्या होगा,
12 होगा। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर, आपको पेरीमीटर ढूंढना है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ द बाउंड्री, जो भी बाउंड्री है आपकी, आप इसका सम करोगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो आपका पेरीमीटर होगा 75 प्लस 12 प्लस 75 प्लस 12। ठीक है, तो 75 150 और 12 प्लस 12 24। तो अगर आप 150 के अंदर 24 ऐड करते हो तो ये हो जाएगा 174 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका हो जाएगा 174 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है युवराज हिट्स 15 सिक्सेस इन 60 बॉल्स। तो युवराज ने टोटल कितनी सिक्सेस मारी है बेटा? 15 सिक्स। कितने बॉल्स में? 60 बॉल्स में। और यहाँ पे आपको क्या बोला है? सचिन हिट्स 1/5 ऑफ द सिक्सेस ऑफ 110 बॉल्स ही फेस्ड। तो सचिन ने टोटल 110 बॉल्स फेस किए, उसमें से उसने कितनी सिक्स मारी है? 1/5। ठीक है, तो 6 हिट बाय सचिन। सचिन ने टोटल जितने भी बॉल खेले हैं उसके 1/5 में उसने 6 हिट की है। तो ये होगा 1/5 ऑफ कितने बॉल्स फेस किए? 110। तो यहाँ पे आपको करना है 110 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, कितने आएगा? 22। ठीक है, तो सचिन ने कितनी सिक्सेस हिट की है बेटा? तो सचिन ने हिट की है 22 सिक्सेस। कितनी हिट की है? 22 सिक्सेस। और युवराज ने कितनी की है? 15। और सचिन ने कितनी की है? 22। तो बताओ किसने ज़्यादा की है? यस, सचिन ने। सचिन हैज़ हिट, ठीक है, मोर सिक्सेस। किसने ज़्यादा सिक्स हिट की है? सचिन ने। सचिन हैज़ हिट मोर सिक्सेस। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ गिवन शेप। आपको इस शेप को लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है एंड राइट द नंबर ऑफ लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन। आपको यहाँ पे क्या करना है? पहले तो सिमेट्री की लाइन्स ड्रॉ करनी है और फिर लिखना है कि कितनी लाइन्स ड्रॉ हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे सिमेट्री की लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी। ठीक है, सेकेंड ये आपकी लाइन होगी, ये हो गई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप दूसरी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि एक आपने यहाँ से की। ठीक है, तो ये भी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एंड अगेन आपने यहाँ से की तो ये भी हो जाएगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल अगर आप काउंट करते हो तो 1 2 3 एंड 4, टोटल आपकी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई? टोटल 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, टोटल आपको 4 लाइन्स मिलेगी सिमेट्री की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स का नंबर नेम लिखना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे कॉमास पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब आप कॉमा पुट कर देते हो तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा 4 लाख। फिर कितने थाउजेंड है बेटा? 58,000। तो 58,000, 4,58,300, 316। ठीक है, 4,58,316। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वापस कॉमा पुट कर देते हैं। ठीक है, 2793623। तो कॉमा पुट करने के बाद ये कितने लाख हो गए? 27 लाख। 27 लाख। ठीक है, अब थाउजेंड्स कितने बेटा? 93,000। तो
93,000। उसके बाद कितने हैं हंड्रेड्स में, 623, 623। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर आप कॉमास पुट करते हो तो यहाँ पे 3 फिर 2 और फिर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा करोड़्स में चला गया ये तो ये होगा 1 करोड़। यहाँ पे लैक्स में तो 0 0 है, 1000 में सिर्फ 2000 ही है, तो 1 करोड़ 2000, 1 करोड़ 2469, 400 और 60 और 460 और 9। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है आपको। चलो तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्या दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में, आपको बोला है आइडेंटिफाई द एंगल। आपको क्या करना है, एंगल को आइडेंटिफाई करना है। एंड राइट द नेम ऑफ द एंगल। आपको एंगल को आइडेंटिफाई भी करना है और उसका नेम भी लिखना है। तो पहला एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, क्या है बेटा, ये 60 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या नाम है इस एंगल का, 60 डिग्री। ठीक है, और कैसा एंगल है ये, तो ये है 90 से कम, यानी कि ये होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या पूछा है आपको। आपको पूछा है 90 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री में ये क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल, 90 से कम एक्यूट एंगल, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 डिग्री क्या होगा, राइट एंगल। थर्ड कौन सा एंगल है बेटा, तो थर्ड पूछा है आपको 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री ये कैसा होता है, तो 360 डिग्री यानी पूरा सर्कल कंप्लीट करता है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला है दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। ये जो फिगर है वो किससे बनी हुई है, 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल से। ठीक है, 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। तो ये सारे जो रेक्टेंगल्स है वो आइडेंटिकल है। आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, बाउंड्री का सम। तो अगर आप बाउंड्री में देखोगे तो ये एक रेक्टेंगल 10 हुआ, तो ये दूसरा रेक्टेंगल भी क्या होगा, 10 होगा। और दूसरा अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5। अगेन ये भी कितना होगा, 5। एंड ये भी कितना होगा, 5। ठीक है, तो 8 आइडेंटिकल रेक्टेंगल से बना हुआ था, तो ये 10 10 5 5 5 5। अब सेम यहाँ पे भी होगा अगेन, तो यहाँ पे इस साइड भी ये कितना होगा, ये वाली 5, ये 5, अगेन ये 5 और ये 5। एंड अगेन ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10। ठीक है, आपको क्या चाहिए था बेटा, पेरीमीटर फाइंड करना था। तो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 10 + 10। ठीक है, 5 4 बार है तो 5 + 5 + 5 + 5। अगेन पीछे आएगा 10 + 10 और प्लस में वापस 4 बार 5 आएगा, 5 5 5 एंड 5। तो 2 बार 10 है तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 और ये भी हो जाएगा 20। ठीक है, 10 और 10 20 प्लस अगेन 2 बार 10 20 और अगेन 5 10 10 20। ठीक है, 10 और 10 20। तो ये होगा 20 40 60 और 80 सेंटीमीटर।
ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बोला है हाउ मैनी 1/4 विल मेक हाफ। ठीक है, कितने 1/4 मिला के हाफ बनाएंगे। तो हाफ 1/4 और हाफ मतलब होता है 1/2। ठीक है, कितने 1/4 मिला के बनाएंगे 1/2। ठीक है, तो अगर आप दो 1/4 लोगे, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2/4 यानी कि 1/2। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो इसको कि अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको पूछा है कितने 1/4, हाउ मैनी 1/4 विल मेक 1/2। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 1/4 मतलब कंप्लीट एंगल का फोर्थ पार्ट मतलब 90 डिग्री, और ये कंप्लीट एंगल का हाफ पार्ट यानी कि 180 डिग्री। तो अगर आप इसके दो पार्ट ले लोगे इंटू 2 तो आपको मिल जाएगा 180 डिग्री। तो हाउ मैनी 1/4 विल मेक हाफ, तो आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, 2 टाइम्स 1/4 विल मेक अ हाफ। नेक्स्ट आपको पूछा है हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4। ठीक है, तो आपको बोला है कितने 1/8 मिला के बनाएंगे 1/4। तो अगर आप 1/8 को देखो तो एक 8 पार्ट में से एक पार्ट, तो अगर आप इसको डिग्री में देखने जाओगे तो 1/8 पार्ट है ऑफ 360 डिग्री। तो अगर ये देखोगे आप तो ये होगा 8 4 ज़ा 32, ठीक है, 8 5 ज़ा 40, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, 1/8 मतलब 45 डिग्री होगा, और 1/4 जैसा आपने यहाँ पे देखा था कितना होता है 90 डिग्री। तो कितने 45 डिग्रीज 90 डिग्री बनाएंगे, तो आपका आंसर है 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाउ मैनी 1/8 विल मेक 1/4, तो इसका भी कितना आंसर आएगा बेटा 2 1/4 विल मेक 2 1/8 विल मेक 1/4। नेक्स्ट आपको पूछा है हाउ मैनी 1/8 विल मेक हाफ। तो कितने 1/8, तो 1/8 मतलब 1/8 और बनाएंगे हाफ मतलब 1/2। तो 1/8 अभी आपने देखा कितना होता है बेटा 45 डिग्रीज करोगे तो, और हाफ मतलब कितना होता है 180 डिग्रीज। तो आप 45 डिग्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 180 मिलेगा। तो 2 बार किया तो 90 और 4 बार किया तो 180। ठीक है, तो 45 4 ज़ा, तो हाउ मैनी 1/8 विल मेक हाफ, तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, पहले का आंसर 2, सेकेंड का आंसर 2 और थर्ड का आंसर 4 है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर शो कर दिया है। लुक एट द फिगर एंड ड्रॉ व्हाट द फॉलोइंग शेप्स वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ टर्न। ठीक है, 1/4 टर्न मतलब आपको 90 डिग्री घूमना है, और हाफ टर्न मतलब आपको 180 डिग्री घूमना है। ठीक है, तो अगर आपने इसका 1/4 टर्न किया तो ये जो है साइड वो ऐसी हो जाएगी। तो यहाँ पे अगेन ये ऐसी हो चुकी है, अगर आप देखोगे तो ये 1/4 टर्न हो चुका है 90 डिग्री का। और अगेन आप इसका और 90 करोगे तो 90 90 180 होगा, तो सेकंड में ये वापस इस साइड आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये साइड ऐसी हो चुकी है। तो ये कौन सा है 1/4 टर्न और ये है हाफ टर्न। सिमिलरली यहाँ पे जब आप 1/4 टर्न करोगे तो ये साइड आपकी कुछ ऐसी हो जाएगी एंड 90 डिग्री के बाद, एंड अगेन आपने 90 डिग्री घुमाया तो ये साइड वापस ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था 1/4 टर्न और ये था हाफ टर्न। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो सेम है। जब आप 1/4 टर्न मतलब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये साइड आपकी ऐसे आ जाएगी। तो ये कितना हो चुका है बेटा 90 डिग्री। ठीक है, और ये वापस उसका भी 90, तो ये वापस ऐसी हो जाएगी। ये 1/4 टर्न है और ये 1/2 टर्न है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको बोला है अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ
70 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, ठीक है, 70 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। तो स्पीड ऑफ द कार इज़, तो स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे करना है, तो जैसे कि मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कि 5 आवर्स में कितना किया है बेटा, 70 किलोमीटर। तो 1 आवर में वो कार कितना करेगी, तो ये हो जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 2 0, 5 4 ज़ा 20, कितना आएगा बेटा स्पीड, 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 14 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। सेकेंड आपको बोला है अ ट्रेन रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर इन 4 आवर्स, ठीक है। तो 4 आवर्स, ठीक है, आपको बोला है 4 आवर्स में कितना होगा, 160 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितना होगा, तो ये होगा 160 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, 4 4 ज़ा 16 और 0, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और नेक्स्ट देखोगे अगर आप, तो आपको बोला है अ लॉग बोट गोज़ फॉर 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो 1 आवर में अगर वो 4 किलोमीटर जा रही है तो डायरेक्टली उसकी स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका ट्रेन का कितना आया था, 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर तो लिखा हुआ ही है तो 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाले में आपको बोला है अ मोटर बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर में कितना किया बेटा, 20 किलोमीटर्स। तो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द मोटर बोट मतलब वो 1 आवर में कितना ट्रैवल करेगी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि अगर वो 2 आवर में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही तो 1 आवर में उसका आधा करेगी, दैट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या पूछा है, तो आपको पूछा है हाउ मैनी डिग्रीज इन द एंगल, इस एंगल के अंदर कितने डिग्रीज आएंगे। तो हाफ ऑफ अ राइट एंगल, हाफ मतलब 1/2, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, राइट एंगल का। तो हाफ ऑफ 90 डिग्री, 90 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 45 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा 45 डिग्री। 1/3 ऑफ अ राइट एंगल, 1/3 ऑफ अ राइट एंगल यानी कि राइट एंगल कितना होता है बेटा यहाँ पे भी आपका, तो 1/3 ऑफ अ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 को 3 से डिवाइड करके तो 3 3 ज़ा 9, कितना आएगा बेटा 30 डिग्री। नेक्स्ट 1/4 ऑफ अ राइट एंगल, 1/4 ऑफ राइट एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बार हाफ करना होता है। 90 का हाफ 45 और 45 का हाफ 22.5, या आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो। 90 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 10, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2.0, तो कितना आएगा बेटा 22.5 डिग्री। तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। नेक्स्ट आपको बोला है 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल, तो 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल यानी कि 360 डिग्री। तो 4 9 ज़ा 36 और 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 90 डिग्री। 1/4 ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज़ 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है फाइंड पेरीमीटर, आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का सम होता है। तो चलो करते हैं। 1 यानी कि ये डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 4, ठीक है, प्लस 3 + 4, ठीक है, फिर 3 और 5 तो +3 + 5, फिर 7 तो +7 प्लस 5 तो +5, ठीक है। ऐड करते हैं तो ये होगा 1 + 4 5, 5 + 3 8, तो इतना हो चुका है 8, प्लस 4 + 3 7, ठीक है, प्लस
5 + 7 + 5, तो 5 और 5 10 और 7 17, तो ये 8 + 7 ये होगा 15 + 17 जो होगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है फाइंड 3/4 ऑफ 36, तो ये होगा ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 3/4 ऑफ मतलब इंटू 36, 4 9 ज़ा 36 और 9 3 ज़ा 27। फिर आपको बोला है 5/9 ऑफ 54, ठीक है, 5/9 ऑफ 54, तो 5/9 ऑफ मतलब इंटू 54, 9 6 ज़ा 54, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये होगा 4/3 ऑफ अ डज़न, तो 4/3 ऑफ अ डज़न, तो डज़न में 12 आता है, तो 3 4 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपको बोला है 1/4 ऑफ अ डे इन आवर्स, तो 1/4 ऑफ अ डे, तो डे के अंदर कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, तो 4 6 ज़ा 24, कितना आवर्स होगा बेटा 6 आवर्स। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी फिनिश हो गया है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।